Good morning, students. Students, as we know that we are going through chapter 3 from the Hornbill, and the title of the chapter is Discovering Truth. The saga continues. And children, uh, we are uh, coming to the concluding paragraphs of the chapter, and as we have read in the previous lectures that uh, finally uh, King Tut's mummy was scanned, and King Tut's mummy was the first mummy to be scanned. And as we know that King Tut was uh, a powerful king, and he was the last heir of his dynasty in the history of Egypt. Children, we have read that after scanning his body, the technicians again sent back his body towards the place from where it was taken out. And now we are going through the second last paragraph of the chapter. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. देखिए आफ्टर टुट्स बॉडी हैड बीन स्कैंड, जब देखिए राजा टुट की बॉडी को सीटी स्कैन कर लिया गया, और सीटी स्कैन करने के बाद उसकी बॉडी को उसी स्थान पर भेज दिया गया टॉम में जहाँ से वर्कमैन निकाल कर लाए थे। तो देखिए ऑथर कहता है कि ट्रेलर में वापस आकर एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर राजा टुट के कई एस्टोनिशिंग पिक्चर्स लिए, कई आश्चर्यजनक चित्र लिए। He took or pulled up so many astonishing or surprising images of King Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. पिक्सल बिखरने से एक ग्रे कलर का सिर प्रकट हुआ, और टेक्नीशियन ने उसे प्रत्येक डायरेक्शन में घुमाया in order to have a better observation of King Tut's head. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. गर्दन के पीछे की जो हड्डी थी, नेक वर्टिब्रे, appeared as clearly as in an anatomy class. देखिए जो गर्दन की वर्टिब्रे थी वो भी उतनी ही स्पष्ट रूप से दिखाई दी जितना कि एनाटॉमी क्लास में प्रोफेसर के द्वारा दिखाई जाती है। Other images revealed a hand, several views of the rib cage, and a transection of the skull. देखिए other views also came before us, हमारे सामने other pictures भी आए, और जो अन्य पिक्चर्स आए उनमें हाथ और रिब केज, पसली का पिंजर, रिब केज और मीन्स स्कल मीन्स खोपड़ी का एक ट्रांसैक्शन हमारे सामने आया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब जो प्रेशर था, जो तनाव था, जो टेंशन थी वो खत्म हो गई थी। द प्रेशर वाज नियरली केम टू एन एंड। सिटिंग बैक इन ए चेयर, जाही हब्बास स्माइल्ड। अब देखिए अपनी कुर्सी पर बैठकर वापस बैठते हुए जाही हब्बास मुस्कुराए। जाही हब्बास who was the Secretary General in the Egypt Supreme Council of Antiquities. तो he
sat back in his chair and he smiled and he took a sigh of relief. जाहिर हवास अपनी कुर्सी पर बैठे मुस्कुराए और चैन की सांस ली. Visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. और वो इस बात को प्रकट कर रहे थे कि कोई भी गंभीर गड़बड़ नहीं हुई. That nothing happened so wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. And he admitted this fact, he said. और बोले, उन्होंने इस फैक्ट को एडमिट किया. बोले आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड. बोले मैं पिछली रात एक सेकंड भी नहीं सो सका, बिल्कुल नहीं सोया. एंड आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था. बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. बट Jai Abbas said that now he thinks that he would go and sleep. बोले अब मैं सोचता हूँ, अब मुझे लगता है कि मैं जाकर सो सकता हूँ. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. अब देखिए ऑथर कहते हैं कि जब हम ट्रेलर से मेटल की स्टेयर्स से उतरकर रेतीले मैदान में आए, सैंडी ग्राउंड में आए, तो द विंड हैड स्टॉप्ड. हवा बंद हो गई थी. द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल. जो विंटर एयर थी वो कोल्ड एंड स्टिल थी. देखिए जो ठंडी हवा थी, जाड़े की हवा थी, वो ठंडी और शांत थी. लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि मृत्यु समान हो, डेथ के समान. इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इन डिपार्टेड लोगों की घाटी में, इन मृत लोगों की घाटी में. ही वॉज थिंकिंग दैट द विंटर एयर वॉज सो कोल्ड as they were standing there in the valley of the dead people. Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. अब देखिए, कमिंग टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर द ऑथर टेल्स अस. अब देखिए इस चैप्टर के अंत में आकर ऑथर हमें बताते हैं कि जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट्स टॉम्ब स्टूड ओरियन. द ऑथर टेल्स अस कि जस्ट लाइक डेथ, मृत्यु के समान, टुट के टॉम्ब के प्रवेश द्वार पर, जहाँ टुट का टॉम्ब था वहाँ का जो प्रवेश द्वार था, जो एंट्रेंस था, उस पर तारामंडल ओरियन खड़ा था, जिसे मिस इजिप्शियंस, एंशिएंट इजिप्शियंस, जिसे प्राचीन मिस्र के लोग ओसिरिस की आत्मा मानते थे. एंड अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इजिप्शियंस, दे न्यू it as the soul of Osiris, and Osiris the god of the afterlife. Osiris जो कि अगले जीवन का देवता है, watching over the boy king, और वो उस boy king पर निगरानी रखे हुए था, वॉच कर रहा था, उसके टॉम्ब की देखभाल कर रहा था. So children, with this paragraph the chapter is over, and above all we can say in this chapter the author tells us about King Tut and how the different facts, data and other things were being find out about his life and death, and
The author also tells us about the history of his dynasty, about his father or grandfather, because he was the last heir of his dynasty, and his father or grandfather ruled over nearly 4 decades in Egypt. So children, I hope you have got this chapter, and after that I am going to discuss one of the long questions of this paragraph, and the question is, he was the last of his family line. What do you learn about Tut's dynasty from the extract? Discovering Tut, the saga continues. तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपनी फैमिली लाइन का अंतिम उत्तराधिकारी था, अंतिम सदस्य था। तो व्हाट डू यू लर्न अबाउट टुट्स डायनेस्टी, आप टुट की डायनेस्टी के बारे में, टुट के वंश के बारे में क्या जानते हैं फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट डिस्कवरिंग टुट, इस चैप्टर के माध्यम से जिसका टाइटल डिस्कवरिंग टुट है, द सागा कंटिन्यूज। तो देखिए चिल्ड्रन, टुट्स ग्रैंडफादर और फादर Amenhotep III was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the dynasty's golden age. देखिए टुट के फादर या जो ग्रैंडफादर थे Amenhotep III, उन्होंने 4 decades तक, 4 दशकों तक इजिप्ट में पावरफुल फेरो के रूप में, पावरफुल किंग के रूप में शासन किया। His son Amenhotep IV promoted the worship of Aten, the sun disk, और उनका जो बेटा था जिसका नाम Amenhotep IV था, उसने सन डिस्क, सूर्य चक्र की पूजा को प्रमोट किया। Promoted the worship of the Aten, who was the sun disk. He changed his name to Akhenaten और servant of the Aten, उसने अपना नाम बदलकर Akhenaten या servant of the Aten रखा। He moved the religious capital from the old city Thebes to the new city of Akhenaten, और देखिए उसने अपनी जो रिलीजियस कैपिटल थी, जो धार्मिक राजधानी थी, वो पुराना शहर जिसका नाम थीब्स था, वहाँ से हटाकर आखिनातेन शिफ्ट की। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग एमन, और बाद में उसने एमन नामक मेजर गॉड पर अटैक करके पूरी कंट्री को एकदम अचंभित कर दिया, शॉक कर दिया। ब्रेकिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसने वहाँ के मेजर गॉड जिसका नाम एमन था, उसकी इमेजेस को तोड़ दिया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा और उनके मंदिरों को बंद कर दिया। Thus the Vaki king started one of the strangest periods in the history of ancient Egypt, और इस प्रकार उस सन की राजा ने मीन्स इजिप्ट के एक स्ट्रेंजेस्ट पीरियड को स्टार्ट किया, सबसे अद्भुत काल को स्टार्ट किया, समय को स्टार्ट किया। आफ्टर आखेनातेन्स डेथ, अब देखिए आखेनातेन की मृत्यु के बाद ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमैन खकरे अपीयर्ड ब्रीफली, एक रहस्यमयी राजा, एक रहस्यमयी सम्राट इसमैन खकरे जिसका नाम था, वो कुछ समय के लिए आया एंड एग्जिस्टेड विदाउट लिविंग इवन ए सिंगल ट्रेस, और कोई भी ट्रेस, कोई भी निशानी छोड़कर अदृश्य हो गया। Then a very young Tutankhaten took the throne, and then a very young ruler Tutankhaten came and sat on the throne. अब देखिए तब एक यंग रूलर जिसका नाम तुतनखातेन था, वो सम्राट बना, सिंहासन पर बैठा। And this Tutankhaten is widely known today as King Tut, और देखिए इस किंग जिसका नाम तुतनखातेन था, उसे राजा टुट के नाम से पूरे संसार में जाना जाता है।
द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तुतनखामन, और उस बच्चे ने तुरंत ही, लड़के ने तुरंत ही अपना नाम परिवर्तित करके तुतनखामन रखा। तुतनखामन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ एमन, एमन की सजीव मूर्ति। ही सुपरवाइज्ड द रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, उसने पुराने रीति रिवाजों को फॉलो किया, सुपरवाइज किया। तुतनखामन रूल्ड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। अब देखिए, राजा टूट ने भी लगभग 9 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई अनएक्सपेक्टेडली। द डिटेल्स ऑफ हिज पासिंग अवे आर नॉट अवेलेबल, लेकिन उसकी मृत्यु के बारे में जो डिटेल्स थी और विभिन्न जो डेटास थे, दैट वर नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं थे। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। अब देखिए, मॉडर्न वर्ल्ड वाज गैसिंग, पुट मैनी गैसेस कि व्हाट मस्ट बी हैपेंड अबाउट हिज डेथ। कि मॉडर्न वर्ल्ड इस बात को सोच रहा था कि उसके साथ क्या हुआ होगा, कि हाउ डिड ही डाई, उसकी मृत्यु कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मृत्यु के समय उसकी एज क्या थी। तो दीज वर द टू बर्निंग क्वेश्चंस राइजिंग, और स्टिल द मॉडर्न वर्ल्ड थिंकिंग, एंड दीज टू क्वेश्चंस आर स्टिल अनआंसर्ड, और इन 2 प्रश्नों के उत्तर पाने अभी भी बाकी है। सो चिल्ड्रन, this was all about King Tut. We have read. I hope you have got this chapter. Thank you.